Hello dear students, a very good morning. Welcome to my YouTube channel, Manik Chand. Today we start chapter 7 of factorization of class 8. That is a very important chapter for you all. Factorization, you have just how to factor a polynomial. Before factorization of the polynomial, you have to factor of the rational numbers like that. So dear student, how to you have to see here, you have to watch here how to factor of the polynomial, how to factor of the, you can say that, expressions. So dear student, today we start. First the topic is you have to take common. If you want to factorization, so you have to take how to take common, like that 2x plus 8. What is the common here? Look at that, 2 means इनके बीच में आपका साइन होता है मल्टीप्लाई का, 2 into x and 8 means what? 2 into 2 into 2. So what is common? Look at that, 2 is as a common. So 2 as a common, then what is remaining here? X, and what is remaining here? 2 and 2. 2 to the 4. That is your answer. So dear student, this is the method how to take common. Take another example. 9x plus 27. Now 9 is what? 3 into x, and 27 3 into 3. Now what is common here? 3 into 3, that means what? 9. You have get 3 plus x plus 3, that is your answer. Just इसे ही मेथड हमें यूज करके इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7.1. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको केवल ये सीखना है कॉमन कैसे लिया जाएगा, और कॉमन लेने के लिए आपको बस देखना है दोनों में कॉमन क्या है. सो नाउ डियर स्टूडेंट, वी स्टार्ट डायरेक्टली ऑन एक्सरसाइज 7.1. Question first. A is what? 6a plus 3b. 6a plus 3b. So dear student, everyone take common. What you have get here as a common? Look at that everyone. You can write 6 as what? 2 into 3 into a as a 3 into b. So what is common here? आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है? 3. तो 3 हमने कॉमन ले ली. रिमेनिंग 2 और a, that is 2a plus b. That is your answer. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जो कॉमन दिख रहा है वो हम कॉमन लेंगे, और रिमेनिंग जो बचा है उसको आप वैसे के वैसे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा. रेस्ट ऑफ ऑल आप सब ऐसे ही कर सकते हैं. फर्स्ट का सभी क्वेश्चन सेम इसी बेस पे हैं. नाउ we come to next question. Question number 2. 2a. 2a is what? 18ax. 18ax plus 15ay. 15ay. So 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 into 3 into a into x. 15 को बेटा हम लिख सकते हैं 3 into 5 into a into y. Now get what is common. Look at that. You have get there 3 and a, both are common, means 3a as a common. तो 3a हमने कॉमन ले लिया. रिमेनिंग बचा क्या है? 2 बचा है, 3 बचा है, x बचा, मीन्स 2 3 6 into x. 6x, यहाँ पे 5 और y, 5y. That is our answer. चेक करना हो कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई करेंगे फिर से आएगा 3 6 18 a into x ax, 3 5 15 a into y ay. सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे. एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट है, सेकंड ए हमने सॉल्व कर लिया. अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. आप पूरा वीडियो के लिए तक देखिएगा. पूरी एक्सरसाइज आप 7.1 बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड ए. थर्ड ए इज व्हाट? 7a plus 7b plus 7c. 3 पेयर्स हो गए इस बार. 7a plus 7b plus 7c.
So everyone look at that. 7 into what? X. 7 into what? B. 7 into what? C. अब सब में कॉमन क्या है बेटा? 7. 7 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? A plus B plus C. That is your answer. सिंपल सा है. Got it everyone? I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा. Now 7D क्वेश्चन और सॉल्व करने से 7D. 7D is what? minus 18 minus 24 minus 18 minus 24y 24ay 24ay minus 6y. now look at it. minus 18 को हम लिख सकते हैं minus 2 into 3 into 3 minus 24 को 2 into 2 into 2 into 3 into a into y माइनस 6 को 2 इंटू 3 इंटू वाई. अब आपको तीनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है वो देखना है. सबसे पहले देखिए माइनस 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 है तो माइनस कॉमन ले लिया हमने. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. सो अब देखिए यहाँ y है, यहाँ y, बट यहाँ y नहीं है, इसमें y कॉमन नहीं है. तो हमने 2 और 3 2 3 6 कॉमन ले लिया. तो बताइए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और 3 2 6 तो बचेगा बेटा क्या यहाँ पे 3. जब आप माइनस से माइनस कॉमन लेंगे तो वो प्लस बन जाएगा. यहाँ 2 निकल गया, 3 निकल गया तो 2 2 4 ay 4 ay. यहाँ माइनस निकल गया, 2 निकल गया तो प्लस के केवल बचा है y. यही हमारा हो गया आंसर. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. ये थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही जैसे थे. अब फोर्थ में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको. Look at that question fourth. Factorization of following. Fourth A. Fourth A is what? Fourth A is what? mx plus सेम क्वेश्चन तो है. फोर्थ ए mx plus my plus 3mz. mx plus my plus 3mz. 3mz. mx plus my plus 3mz. सिंपल सा है सब में. m into x m into y 3 into m into z. बेटा बताओ जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कॉमन आ रहा है बेटा. एवरीवन लुक एट दैट. व्हाट इज कॉमन? m m m. सो m एज अ कॉमन आंसर गॉट x plus y plus 3z. दैट इज योर व्हाट आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन है. सिमिलरली इसी पे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सी नंबर 4C. 4C है 3a in bracket x plus y minus 4b in bracket x plus y. Now dear student look at that. what is common here? अब आपको पूरे वैल्यू कॉमन देखनी. यहाँ जहाँ से प्लस माइनस है वहाँ से यहाँ के बीच में आप देखेंगे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x प्लस वाई और x प्लस वाई. तो बेटा हमने x प्लस वाई ले लिया कॉमन. अब बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में? यहाँ देखिए ब्रैकेट कॉमन. यहाँ पे x प्लस वाई हमने ऐसे ढक लिया. तो बेटा बताइए इधर क्या बचा आपका? 3a. यहाँ हमने लिख दिया 3a. यहाँ पे x प्लस वाई आप तो क्या बचा बेटा? माइनस 4b. यहाँ लिख दिया माइनस 4b. यही आपका हो गया आंसर. सिंपल सा. आई होप आपको ये समझ में आ गया. क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक हम लोग आ चुके हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा. आज पूरी एक्सरसाइज 7.1 बहुत आसान एक्सरसाइज है जिसे हम फिनिश करेंगे एक वीडियो में. आप look at that. Fifth question. 5th A. A plus 3b in bracket x plus
a प्लस 3b इन ब्रैकेट y। सेम क्वेश्चन भी आपने सीखा था यहाँ पे। आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू बिल्कुल सेम है, a प्लस 3b यह सेम है। कॉमन ले लीजिए, a प्लस 3b कॉमन ले लिया, ब्रैकेट जो कॉमन ये बचा बेटा बताइए यहाँ पे क्या बचा है x, यहाँ साइन किसका है प्लस, यहाँ इसको कॉमन लिए बेटा क्या बचा y, x प्लस y। सिंपल सा, ये कॉमन आ रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा, यहाँ y बचा, आंसर हो गया। ऐसे फिफ्थ के सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। फिफ्थ का देखिए थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। फिफ्थ सी, 5r प्लस AR 5r प्लस AR प्लस 5a प्लस AS 5a प्लस AS। अब इसे पेयर देखिए बेटा, पेयर बनाएंगे, चार है तो दो दो का पेयर बना लेंगे, ये दो पेयर बनाए, ये दो पेयर बनाए। बताइए बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, AS एंड AR, 5 प्लस R कॉमन है, 5 प्लस AS कॉमन होगा, ये 5S है बेटा। अब बेटा बताइए इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में आप देख सकते हैं 5 इंटू R प्लस A इंटू R, और यहाँ पे है 5 इंटू S प्लस A इंटू S। अब देख सकते हैं दोनों में R कॉमन है, तो R कॉमन ले लिए तो बचेगा 5 प्लस A। यहाँ पे दोनों में A कॉमन है, सॉरी S कॉमन है, तो क्या बचेगा 5 प्लस A। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, देख सकते हैं आपका सेम है, 5 प्लस A 5 प्लस A। सो दोनों में हम 5 प्लस A कॉमन ले लेंगे। अब बताइए बेटा क्या बचेगा, R, यहाँ 5 प्लस A निकाल लेते, यहाँ R बचा, यहाँ 5 प्लस A यहाँ पे कॉमन लेते, यहाँ पे S बचा, यही आपका हो गया आंसर। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो क्वेश्चन 5 हो गया आपका इसी पे। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 भी हम देख लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे है। Now question number 6. A 6A is what? 72 minus 9A. 72 minus 9A plus 2AB minus 2AB minus 16B. 16B। जस्ट अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि कॉमन जो आएगा सेम आना चाहिए दोनों ब्रैकेट में। अगर हम देखें इन दोनों ब्रैकेट की बात करें, अब आप डायरेक्टली कॉमन लेना सीखिए। डायरेक्टली कॉमन लेना सीखिए बेटा। 72 है, 9 है, तो 9 की टेबल में 70 आता, 72 आता है, यस आता है, तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 9। 9 कॉमन लेने मतलब 9 से 72 में आप डिवाइड कर देंगे बेटा, तो 9 से 72 में डिवाइड करो, जिनको डिवाइड आता है वो फट से बता देंगे। 9 8 जा 72 माइनस 9 से 9A में डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा बेटा 1, क्या आ जाएगा 1। अब इन दोनों में आप देखेंगे तो प्लस का 2 और B, देखिए दोनों में B भी है, तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ A आएगा, और 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8 आएगा। ये 8 माइनस A है, ये A माइनस 8 है, दोनों अलग है, सेम नहीं है। A प्लस बी और A माइनस बी और B माइनस से दोनों अलग नंबर्स होते हैं। तो बेटा हमें सेम करना, अगर 8 माइनस A यहाँ है तो यहाँ भी 8 माइनस A होना चाहिए, या A माइनस 8 यहाँ है तो यहाँ भी A माइनस 8 होना चाहिए। तो दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9। जब माइनस का 9 हो जाएगा तो A जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, और जो B आप 8 जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्या है, सेम है। ये सेम होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर सेम नहीं है तो आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, सेम आपको बनाना होगा ना। हो A माइनस A दोनों में कॉमन ले लिया हमने,
बचा क्या आपके पास -9 प्लस 2b। ए माइनस ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा है -9 प्लस का 2b। अब इसको सही ऑर्डर में लिखना है तो क्या लिख देंगे 2b - 9, दैट इज योर आंसर। बहुत सिंपल सा बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए। इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा था, पहले हमने 9 कॉमन लिया तो 9 8 द 72, 9 से डिवाइड किया 1। दोनों में 2b कॉमन है, 2b ले लिया, 2 से 2 कट जाएगा, b से b कट जाएगा, a बचेगा, 2 से 16 डिवाइड करेंगे 8, b भी निकल गया। अब यहाँ 8 माइनस है, यहाँ a माइनस 8 है। अगर 8 प्लस a होता और a प्लस 8 होता तो सेम है, बट माइनस में क्या है दोनों डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमने क्या किया इसमें से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी a माइनस 8 हो जाएगा, ये भी a माइनस 8 हो जाएगा। अब a माइनस 8 कॉमन ले लिया तो मेरा बेटा यहाँ क्या बचा -9, यहाँ पे a माइनस 8 कॉमन क्या बचा 2b। अब पहले प्लस को लिखते हैं देन माइनस। बेटा इतना नोट करिए आप लोग सब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात हैं। 6 आप पूरे इसी बेस पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7a ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, ay माइनस by। फिर से बेटा वही है, कुछ नया नहीं है, पेयर बनाना है। ये दोनों पेयर बनाए, ये दोनों पेयर बनाए। बताइए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको बेटा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए। बहुत सिंपल सा बताइए, ax प्लस bx में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा? यस वेरी गुड, x कॉमन दिख रहा है तो क्या आ जाएगा a प्लस b। अब बताइए बेटा इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? y, नो माइनस y। अगर साइन माइनस का है तो माइनस को कॉमन लेना है, यहाँ बचेगा a प्लस, यहाँ पे देखिए बेटा गलती होती है कैसे, अगर जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का साइन बदल जाएगा प्लस में। नाउ अब आप देखिए क्या ये वाली ब्रैकेट की वैल्यू ये वाली ब्रैकेट की वैल्यू सेम है? बिल्कुल सेम है, यानी ये पूरा कॉमन हो जाएगा a प्लस b। तो अगर यहाँ से a प्लस b निकाल लिया तो यहाँ हमारा क्या बचेगा x, यहाँ a प्लस b निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा y। दैट इज योर आंसर। सिंपल सा है बेटा, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 7 पे ऐसे पूरे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा आप लोग। सेम पूरे इसी पे है, क्वेश्चन 8 पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, au माइनस 5b au माइनस 5b प्लस ab माइनस 5u। सो डियर स्टूडेंट, अभी तो क्या होता था कि हमें पेयर एक साथ मिलते रहते थे, हम कॉमन ले लिया करते थे। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम ये देखेंगे कि पेयर कौन सा बन रहा है, उन पेयर्स को पहले हम बनाएंगे, देन वी हैव टू टेक एज अ कॉमन। अब जैसे देखिए au है 5b है, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ab है 5u, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है बेटा। तो हमें क्या करना, उन पेयर बनाना है जो उसमें कॉमन दिख रहा हो या कॉमन मिल रहा हो। बताइए कौन सा कॉमन मिल रहा है इसमें आपको, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। au है, यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है, यानी इसका साथी ये है। लाइक टर्म की बात हम कह सकते हैं। तो au माइनस क्या हो जाएगा बेटा 5u प्लस ab, ये माइनस बाद लिख दे, माइनस 5b। अब आप देख सकते हैं इन दोनों और इन दोनों में कॉमन दिख रहा होगा आपको। सो बताइए इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है u, तो यहाँ बचेगा a माइनस 5। बताइए बेटा इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, प्लस का b। अगर यहाँ प्लस का है तो प्लस b कॉमन लेंगे, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो माइनस b हम कॉमन लेते हैं।
बी कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा a-5। अब देखिए बेटा a-5 है, a-5 है, सेम है, a-5 हमने कॉमन ले लिया। जब a-5 ले लिए तो ये और ये बचता है u प्लस b। दैट इज आवर आंसर। सो ये है एक्सरसाइज 7.1 में। बेसिकली पूरी एक्सरसाइज में आपने क्या सीखा? कॉमन लेना। और कॉमन लेना आपको अगर आ गया तो पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल सा है, आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी फोकस किस में करना है आपको? प्लस और माइनस पे फोकस करना है, वो मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। प्लस इस 8 क्वेश्चन में पेयर बना के आपको कॉमन लेना है, किसमें कॉमन आ रहा है, कौन सा पेयर बन रहा है, वो पेयर बना के तब आप कॉमन लेंगे। और एक चीज़ और रखिए, जैसे आप ये ब्रैकेट टाइप का बॉक्स बनता है तो यहाँ जो वैल्यू होगी वही वैल्यू अगले ब्रैकेट में होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। सेम टू सेम का मतलब जैसे a-5 है तो यहाँ भी a-5 उल्टा नहीं हो सकता है, 5 माइनस हो जाएगा यानी कि डिफरेंट है, तब आपको माइनस कॉमन लेके सॉल्व करना होगा। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1 with the help of these videos. Thank you so much once again.